country, it seems to be filled with so much water everywhere. See, neither. Finally, we reached Amsterdam. Finally, we reached Amsterdam. Looks a bit plain, right? थोड़ा सा plain है. Was a very difficult journey. काफ़ी सारा सामान घर पे भूल गया. But the good side is like this trip of me coming to Amsterdam, catching the Amsterdam flight was a very up and down journey because late निकला, काफ़ी सारा सामान भूल गया, like a power bank, adapter and earphones. And then जब मैं पहुंचा तो realize हुआ कि मैं 1 घंटे जल्दी ही पहुंच गया हूँ. And I was so panicking उधर. And उसके अलावा I was searching for a power bank ख़राब था, वो मैंने पकड़ लिया था, but that guy at the Mumbai airport started fighting. Still I like lost more than 4,500 rupees, but I was okay with it. I'm sad about it. I don't know how to feel about it. It's ruining my mood. So anything that ruins your mood, I think the best thing to do is just deflect or pull out your attention from it for the time being, because just like the stock market, things are never gonna be like up and down. It's gonna be like up and down. It's not gonna be straight always, and that's what trips like these teach you. That see, that's the airport. So that's what trips like these teach you, where it's not gonna be a linear journey. I lost money on the way because one, I forgot these things. Second, I tried to buy them, which was an added pain. Third, I got scammed because the charger of the power bank was not working. It heated up my phone, and now I'll have to buy a new one. So I just put like 3 times the cost on the power bank, and it is kind of disappointing. But let's see what happens. I mean,
I don't know why, but I usually get sad at these things a lot. But I need to learn how to move on from this quickly, even though money is lost. But I usually get stuck in this cycle. So yeah. So we've just arrived and what's my first feeling coming here is like I don't know. Let's see क्या होता है. But Amsterdam is definitely a new experience for me. The whole travel experience was a Yes, follow me. we have reached the Amsterdam airport. So we are waiting at the immigration line यहाँ पे. बहुत ही बड़ी सी इमिग्रेशन लाइन है. हाँ हाँ हाँ. नहीं ऐसा कुछ फॉलोइंग का नहीं पता. तो हम लोग अभी इमिग्रेशन की लाइन पर हैं. So I have just arrived at the Amsterdam airport. We are going into a grocery store. Let's see how much does a Red Bull cost here. Red Bull Zero also. I think people self-order from there. We'll need to find a target first क्योंकि हमें पावर बैंक्स और अडेप्टर ये सब टारगेट पे ही सस्ता मिलेगा आई गेस. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ चार्जिंग पॉइंट जो अभी तक तो मुझे नहीं दिखा.
This place is totally unknown for me. I need to figure everything out. It is raining outside. जैसे ही यहाँ पहुँचा बारिश हो रही है. वाओ. I'm having an apple. Now how much does this apple cost? What do you think? It costs 150 rupees. I needed a place to charge my phone. यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहा है. This is my luggage. छोटा सा 10 kg का बैग, एक सामने एक और बैग and एक छोटा सा बैग. So I've just not got more than 20 kgs of luggage. 20 kg of luggage is what I've got as of now. Now we'll figure out कि यहाँ से जाना कैसे, because I don't know anything कि यहाँ से कैसे जाएंगे, but we'll figure out. Yeah. Hey guys, this one. Yeah. This is 300 euros. That's it. I'm gonna say I'm a vlogger. Yeah. You come this way. I'm a vlogger. Hey, I'm a vlogger, man. Yeah. Hey guys, so what's your name? My name is Jason. Jason. So I'm with Jason, and Jason, I needed an earphone and Jason needed a power bank, so we helped each other over here. And I think this is my first friend in Netherlands. Yeah, exactly. Hey Jason. Hey, nice to meet you. Shout out to India. I love Indian people. Thanks. Oh, when are you coming to India then? I plan maybe 2 or 3 months. I will go to India. Okay. Best country, I heard. Yeah, India is much cheap. Like you saw how we were getting power banks for 80 euros and oh my god. Nah, India cheap. Here is like, nah. Yeah. Now you see, it turns around. I'll now leave for the hostel then. What's it? I'll leave for the hostel then. We'll catch up. Yeah. So we just learned how to book a ticket in the metro over here. तो होता क्या है कि उसी ये मेट्रो लाइन है यहाँ पे एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट का मेट्रो एंड एक ऐप है इनकी जो ऐप का नाम है, इस ऐप का नाम है ns.nl. तो इसमें क्या होता है कि इस ऐप में हम लोग लॉगिन करेंगे और जो भी अपनी डेस्टिनेशन है वो डाल देंगे एंड देन आई पुट माई थॉमस कुक कार्ड इन इट और उससे मुझे पता चल गया कि अच्छा इतना यूरो लग रहा है और वहाँ से कट गया ये. तो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है बट इनकी वो बात है कि जो आप प्लेटफॉर्म से वन प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे हो तो ऐप में मतलब आप किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो ऐप में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कहाँ से जाना है. यू कुड सी यहाँ पे पुलिस गाय इज़ गोइंग ऑन अ साइकिल ओवर हियर. बहुत कंफ्यूजिंग सा सिस्टम है. अब एक और चीज़ जो मुझे पता चली वो ये है कि यहाँ पे आपका जो ट्रेन टिकट्स है ठीक है वो आप मशीन से ही बुक कर सकते हो बट इफ़ यू बुक इट थ्रू द मशीन द ट्रेन टिकट वुड कॉस्ट यू मच हायर. सो यहाँ से जब मैं कर रहा था अपने हॉस्टल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक तो 6 यूरो बता रहा था, 6.7 यूरोस. आई कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हेयर और आई कुड डू इट फ्रॉम दी ऐप और ऐप में मैंने अपने थॉमस कुक का कार्ड डाला तो चल गया. HDFC का कार्ड भी इज़ वर्किंग वेरी गुड. HDFC से मैंने एक पावर बैंक खरीदा. सो पावर बैंक के लिए अच्छी चीज़ क्या है कि मुझे ना एक बहुत ही बेकार सा पावर बैंक मुंबई से मिल गया बट एक बंदा था स्वीडन का एंड ही वांटेड माय हेल्प. सो व्हाट आई डिड इज़ आई सोल्ड द पावर बैंक टू हिम एंड इंस्टेड आई गॉट ईयरफोन्स क्योंकि जो मेरा पिछला पावर बैंक था उसने मेरे ईयरफोन्स ख़राब कर दिए थे. बट आई टोल्ड हिम दिस डिस्क्लेमर कि ऐसा होगा बट ही वाज सो डेस्परेट कि नो आई नीड टू चार्ज इट अर्जेंटली प्लीज़ इफ़ यू कुड सेल इट टू मी. सो आई सजेस्टेड ओके
एंड बट देन व्हेन ही वेंट टू डिस्पेंस दैट कैश तो वो हुआ नहीं. सो what we did instead is we went to a shop together and उसने ये ऑफ़र किया कि एक काम करते हैं कि मैं कुछ ख़रीद देता हूँ एंड देन यू गिव मी दिस पावर बैंक. तो मेरा भी टेंशन छूटा. सो दैट्स द स्टोरी. नाउ यू सी यहाँ पे यू हैव ऑल दीज रेस्टोरेंट्स. सो हाउ मच इज़ अ रेड बुल फॉर? मैंने ना यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी रेड बुल देखी थी, बहुत अलग टाइप की थी, वाइट कलर की थी. आई हैव नो क्लू वो कहाँ पे है, बट आई वुड वांट टू ट्राई दैट रेड बुल एक बार. एंड हम लोग ये ना कल की जो ट्रिप थी रात से लेके अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की. रीज़न ये था कि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था मुंबई एयरपोर्ट पे. एंड फ़्लाइट मुझे लगा कि मैं लेट हो गया हूँ, बट जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो पता चला मैं 1 घंटे पहले ही पहुँच गया हूँ. एंड आई जस्ट रैन अवे इन पैनिक और मैंने काफ़ी सारा सामान छोड़ दिया घर पे. बट सो आई फॉरगॉट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स ओवर देयर. तो हम लोग यहाँ पे आए हैं. दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन द एयरपोर्ट एंड द मेट्रो पोर्ट. सो लेट्स बाई समथिंग फ्रॉम हेयर. लेट्स सी हाउ मच इज़ इट फॉर. Oh, this is nice. The power banks are for 22 euros. Yeah, so we are in a shop and we are watching Osmo 3. This is my favorite brand. So over here, and right now we have a friend. What's your name, sir? Dylan. Dylan. Yeah, as in Bob Dylan. Bob Dylan. Okay, okay. Oh, nice. Yeah. So we are buying something. So let's just buy the power bank. Let's see. Yeah, but I would never want to get into a fight. Yeah. No matter how good of a fighter you are. You don't want to get into other people's fights. No, either. fighting is just for saving yourself, that's it. Yeah. And running fast. Exactly. So, I finally, after so much search, got this charger in 22 euros. And thank you so much, sir. No problem. It works well. एंड मुंबई से तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुंबई में भाई उसने हालत ख़राब कर दी थी. ख़राब पावर बैंक दे दिया, मेरे सारे डिवाइसेस ख़राब कर दिए, और लकीली किसी ने उसको ख़रीद लिया. एंड नाउ आई हैव दिस पावर बैंक फॉर 22 euros विच इज़ मच लेस एंड मच गुड क्वालिटी. अभी एक लड़का एक ट्रेन अटेंडेंट पे चढ़ गया, ठीक है, और मेरे सामने उसको बिच बोल रहा है कि ये यू बिच, यू फकिंग क्रेजी एंड ऑल दैट. और पुलिस वाले आके और लोग आके ऐसे नहीं है कि उसको पीट रहे हैं आके कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है. वो लोग आके उससे बात कर रहे हैं कि भाई उसका इशू क्या है. बंदी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या इशू हो गया. ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक दोनों से डिस्कशन हुआ. फिर उसके बाद तक उसे कोई अरेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया. एंड पता चला कि एक्चुअली वो बंदा ही सही था इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑब्वियसली नॉट इन टर्म्स ऑफ द एंगर, बट ही वॉज बीइंग डिनाइड अ टिकट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया कि ये इंडिया होता ना, इंडिया में होता तो लोग आ जाते बेफिजूली का लड़के को मारने लगते, और लड़की को कुछ बोल दिया. लड़की भी ऐसा नहीं कि उससे बदतमीज़ी से बोल रही है कि हाँ तुमने ऐसे कैसे बोल दिया. वो भी आके सब समझा रहे हैं लड़के को. तो ऐसा जो लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का कि यहाँ पे लड़कों को दबाया जाता है और लड़कियों के पास बहुत पावर है यूरोप में, ऐसा नहीं है. दोनों के पास इक्वल पावर है, क्योंकि दोनों की सुनी गई. इंडिया होता और लड़का और लड़की में पब्लिकली फाइट हो रही होती तो फिर पता है क्या होता. अगर लड़का और लड़की में फ़ाइट हो रही होती और इंडिया होता तो लड़के को आके लोग पीटने लगते हैं बिना उसकी सुने. बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, और वो लड़का अभी भी घूम रहा है. उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दोनों की बात सुनी गई ना कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारा क्या मामला है. पुलिस वाले ऐसे नहीं आए कि भाई अरे तू लड़का है तो जाओ जाके पीटो इसको क्योंकि ये लड़का है. ऐसा नहीं हुआ. तो यार ये देख के अच्छा लगा. मुझे लगता था कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा या ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है. यहाँ पे इरादा ऐसा होता है कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, दोनों की इक्वली सुनी जाती है. दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग.
यार इस इंसिडेंट से ना मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे लड़के और लड़की को इक्वल देखा जाता है, मतलब दैट इज़ एक्चुअल फेमिनिज्म। वही है एक्चुअली कि लड़का और लड़की को इक्वली देखा गया, दोनों को सुना गया, दोनों की प्रॉब्लम सुनी गई। पता चला कि लड़का सही में परेशान था किसी चीज़ से, और लड़की जो है वो भी उसको बाद में फिर बात कर रही है कि हाँ ये गलती थी। बट अगेन इट्स नॉट दैट कि लड़का है तो लड़का और लड़की की फाइट चल रही, लड़के को 4 लोग आके मार रहे हैं या पुलिस आके पकड़ रही है। लड़का था, आके सुना, दोनों के पक्ष को सुना। यहाँ पे मुझे एक सर मिले, यहाँ पे इंडियन सर। आपका नाम क्या है? नाम भूल गया। नदीम। अच्छा, कहाँ से ऑफिस? कहाँ से इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? मुंबई से। कितने साल हो गए आपको? 3 साल हो गए यहाँ पे जॉब। यार अभी एक लड़के और लड़की की फाइट हुई ऊपर, ठीक है? तो लड़का भी चिल्ला रहा था, लड़की भी चिल्ला रही थी। और लड़की तो स्टेशन वाली थी, तो पुलिस वाले आए। ऐसा क्यों था सर? मतलब मैं तो शॉक हो गया कि एक्चुअल फेमिनिज्म तो यही है। मतलब वो फेमिनिज्म की बात नहीं है यहाँ पे, कोई किसी पे हाथ नहीं उठाता, पुलिस हो या हाँ नहीं, पुलिस आके, हाँ कोई आके, ऐसा नहीं कि लड़के को, इंडिया होता तो लड़के को मार देते, बहुत भयंकर मारते। मैं भी ऐसा शौक हो के लड़का चिल्ला रहा है, तो लड़का फ्रस्ट्रेटेड था टिकट को लेके कुछ, और लड़की अटेंडेंट थी। तो लड़की भी ऐसे बदतमीजी नहीं की लड़के के साथ, मतलब बदतमीजी भले ही दोनों की हो गई होगी, बट ऐसा नहीं है कि पुलिस आई और यही है अपना। तो ये मेरी पहली ट्रेन राइड है यूरोप की, फाइनली आ ही गए। सर चाय हो रहे हैं वहाँ पे, मुँह मोड़ लिया। नाइस है तो सुंदर सर है। लोग कैसे हैं यहाँ के इंडिया के कंपैरिजन में? अच्छे हैं, कोल्ड है थोड़े, कोल्ड है, बट ऐसे फालतू के झगड़े वगड़े नहीं करते, ड्रामा नहीं है। उनको डिस्टर्ब नहीं करो, वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, और उनको डिस्टर्ब कर दो तो वो भी नहीं करेंगे फिर? वो लोग इग्नोर करेंगे या तो गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा भी इनका ऐसे ही होता है। Het volgende station is Amsterdam Zuid. Station Amsterdam Zuid. किसी को फिल्म मत करो। अच्छा, किसी को नहीं कर रहा मैं, तो लोकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मानते ना, बुरा मान जाते ना यहाँ पे। यहाँ पे प्राइवेसी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। ओह, मतलब अगर तुम किसी को ऐसे, जैसे तुमने मुझे ले लिया हाँ वीडियो में विदाउट मी आस्किंग मी, तो वो ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर मुझे सिर्फ अपने साइड रखना पड़ेगा कैमरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या सीनरी या तो अपने साइड, या किसी को क्राउडेड पूछ प्लेस के- में नहीं। किसी को पूछ के कर सकते हो। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ तो ऐसा होता, मैं आ रहा था वहाँ से, तो कुछ तो ऐसे ही हाय आके हाय हेलो बोलने लगे कैमरे यहाँ में। पे बहुत ओपन foreigners भी है। है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनसे तो परेशान ही हो जाते होंगे लोग। मैं भी तो फॉरेनर, तुम भी तो फॉरेनर ही होंगे। नहीं, अब तो रेसिडेंट ही होगा ना, पीआर हो गया होगा ना। यार ये ना बड़ा खाली खाली सा है जगह। ये हॉस्टल है हमारा पहले दिन का। हॉस्टल तो काफ़ी बड़ा है, पूरा सुनसान एरिया लग रहा है फॉर एन इंडियन। एक इंडियन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान सी जगह है, और यहाँ पे लोग रहते भी हैं। दैट इज़ द थिंग। लेट्स जस्ट चेक इनटू आवर हॉस्टल। So this is the hostel that's we are living in. And that's me. So we have booked hostel for 2 days, and yeah. So we just reached the hostel. This is how it looks like.
These are the bunk beds, and this is room number 124. And you see, this is my room over here. This is my bed over here, bed number 7. And we'll just move out. Oops, I should not miss the key. You should not miss the key. This is how the corridors are. I could have got logged in. Let me check the washrooms. Nice. So this is how a washroom looks like. So you see, this is the washroom, and right now we'll just have a bath, change our clothes, and go for cycling. ओ भाई साहब, मज़े ही आ गया। अभी तो क्या हुआ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो यार अभी क्या हुआ ना मेरे साथ कि यहाँ पे ना मेरा बैग जो था इसमें 3 कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं। सो हुआ ये कि ये जो मेरा बैग है ये लॉक हो गया था, ऑटो लॉक। इसको लगाया था मैंने ऐसे 000 पे, बट क्योंकि हैंडलिंग ऐसी थी मेरे बैग की एयरलाइंस के द्वारा कि ये जो मेरा बैग है वो कोई रैंडम नंबर पे जाके लॉक हो गया। जस्ट शो राइट, वो रैंडम नंबर पे जाके लॉक हो गया यहाँ पे ऐसे। और फिर व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्या किया कि यहाँ पे पिछले 2 घंटे से आई थॉट कि यार 3 ही कॉम्बिनेशन है, तो 3 मतलब व्हेन यू से 9 की पावर 3 कितना होता है, सो दैट्स 1000, लाइक 10 की पावर 3 इज़ 1000। सो ऐसे पहले तो आई गिव अप, आई सेड कि यार मैं पहले अपना लॉक काटता हूँ बैग, बट देन बैग का कॉस्ट ही इतना है कि अगर मैं काटने जाता तो सारी दिक्कत हो जाती कि वापस एक नया बैग खरीदो, और यहाँ पे तो या इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली। सो इफ़ आई हैड टू परचेज अ न्यू बैग it would have costed me somewhat 50-80 euros, right? That is like 8,000 rupees. तो वो करने की जगह मैंने सोचा कि क्या करें, या तो चेन कटवाओ, बट अगर चेन कटवाओगे तो पूरा बैग ही लॉस हो जाएगा, राइट? सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने 1 घंटा लगा के इस तरीके से आई ट्राइड ऑल दी 1000 कॉम्बिनेशंस, एंड हेयर यू सी किस नंबर में, लाइक till 800 I started losing hope, but when it comes to 900 here is what I got. So मुझे तो लग रहा था कि ये बैग गया, 8,000-10,000 रुपये गए, but eventually I made it and eureka, 1 घंटे की मेहनत सफल आई। और 1 घंटे में तो हो जाते हैं 1000 कॉम्बिनेशंस, बट ये काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। सो आई ओपन माई बैग, ये now I'll take a quick bath and then we'll explore how the hostel is, and हम लोग हॉस्टल एक बार चल के देखते हैं।